I condemn any kind of vandalism or anywhere, any violence. People have right to protest peacefully. Attacking a place of shrine, any place of worship, whether it's a temple or gurudwara or a church or a mosque, is against Sikh principles. I condemn any kind of vandalism or anywhere, any violence. People have right to protest peacefully. And there should be peaceful protests that are allowed, and even peaceful protests are allowed in India and every other nation. But when it becomes violent, and I was more taken aback when attacks were done on the U.S. consulate in U.S. and Canada, and that should be stopped completely. And attacking a place of shrine, any place of worship, whether it's a temple or gurudwara or a church or a mosque, is against Sikh principles. And that's why I don't call these Khalistani Sikhs, because they're working against Sikh principles. And some of the slogans they use, Na Rahega Hindustan, Na Rahega Hindu, this goes against Sikh principles. Sikhs have always been there for India, and Hindus are our brothers, and we value all religions and respect all religions, and making this type of communal divide should stop. And I would like to take an opportunity through your media outlet that, a message to the Indian community that we have to stay united. We don't have to get divisive here. And Hindus, Sikhs, Muslims, Christians living, all Indians living outside India should stay united and be a strong strength, and not fall into and become victim to this dividing tactics that these people are playing. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms. I condemn any kind of vandalism or anywhere, any violence. People have right to protest peacefully. Attacking a place of shrine, any place of worship, whether it's a temple or gurudwara or a church or a mosque, is against Sikh principles. I condemn any kind of vandalism or anywhere, any violence. People have right to protest peacefully. And there should be peaceful protests that are allowed, and even peaceful protests are allowed in India and every other nation. But when it becomes violent, and I was more taken aback when
attacks were done on the U.S. consulate in U.S. and Canada, and that should be stopped completely. And attacking a place of shrine, any place of worship, whether it's a temple or gurudwara or a church or a mosque, is against Sikh principles. And that's why I don't call these Khalistani Sikhs, because they're working against Sikh principles, and some of the slogans they use, Na Rahega Hindustan, Na Rahega Hindu. This goes against Sikh principles. Sikhs have always been there for India, and Hindus are our brothers, and we value all religions and respect all religions, and making this type of communal divide should stop. And I would like to take an opportunity through your media outlet that, a message to the Indian community that we have to stay united. We don't have to get divisive here. And Hindus, Sikhs, Muslims, Christians living, all Indians living outside India should stay united and be a strong strength, and not fall into and become victim to this dividing tactics that these people are playing. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV ई बाबा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. रॉक TV और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms. तो 2026 तक हम आतंकवादी गतिविधियों के समान नक्सलवादी गतिविधियां जिस प्रकार से चल रही है, इनको समाप्त करेंगे। और पुलिस की सतर्कता के साथ जिस ढंग से पूरा मूवमेंट और ऑपरेशन किया है, मेरी अपनी ओर से बधाई। और जैसे हमने पिछले समय भी ऐसे घटनाक्रम में जुड़े हुए सभी पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन किया था, इस घटना में भी अच्छे रिजल्ट लाने वाले अधिकारियों को और सारे पुलिसकर्मियों को निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार पुरस्कृत करेगी। श्रीमान नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पुलिस लगातार हमारे संकल्प के साथ के हर हालत में 2026 तक हम आतंकवादी गतिविधियों के समान नक्सलवादी गतिविधियां जिस प्रकार से चल रही है, इनको समाप्त करेंगे। और ख़ास करके नक्सलवादियों के खिलाफ बालाघाट एकमात्र जिला था जिसमें आज भी हमने मुठभेड़ में 4 नक्सलवादी गिरा के मारे हैं, जिसमें 3 महिला हैं, 1 पुरुष है, और कई प्रकार का अस्त्र शस्त्र उनसे मिले हैं, जिसमें 315 की राइफल है, रॉकेट लॉन्चर है, कई प्रकार के ऐसे घातक हथियार भी है जिनसे भावी संभावना बड़ी दुर्घटना की थी। मैं उम्मीद करूंगा पुलिस की सतर्कता के साथ जिस ढंग से पूरा मूवमेंट और ऑपरेशन किया है, मेरी अपनी ओर से बधाई। और जैसे हमने पिछले समय भी ऐसे घटनाक्रम में जुड़े हुए सभी पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन किया था, उनको हौसला अफजाई की थी, मैं उम्मीद करूंगा इस घटना में भी अच्छे रिजल्ट लाने वाले अधिकारियों को और सारे पुलिसकर्मियों को निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार पुरस्कृत करेगी। और हर हालत में गरीब आदिवासियों को, क्षेत्रवासियों को, गांववासियों को नक्सलवादियों से जो भुगतना पड़ता है उनकी आत्मा जानती है। ऐसे में
पूरा प्रदेश और पूरा देश चाहता है कि इस टाइप के नक्सलियों का अंजाम या तो सरेंडर या उनको मौत के घाट उतारना। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश पुलिस इसको सफलता के साथ कर रही है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms. ये सबसे बड़ा हमला है और इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, मिसाइल फैसिलिटीज हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है, परंतु ये उनकी शह पर ही काम किया गया है। दोनों में साठगांठ है, इजरायल और अमेरिका में। चेतावनी दी है जो वो जल्दी से जल्दी इस न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, हस्ताक्षर कर दे, नहीं तो उसका हाल और भी ज्यादा खराब होने वाला है। बहुत ही चिंताजनक बात है क्योंकि इजरायल ने पहले भी जो वहां पर पश्चिम एशिया में जो किसी भी देश ने अगर प्रयास किया है न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एनरिचमेंट को करने का, तो उन्होंने उसके विरुद्ध ये अटैक्स किए हैं, हमला किया है। इराक के विरुद्ध किया था, सीरिया के विरुद्ध किया, परंतु ये जो अभी कल और आज किया है ईरान के विरुद्ध, ये सबसे बड़ा हमला है और इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, मिसाइल फैसिलिटीज हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। तो बहुत चिंता का विषय है जो अगर ये जो युद्ध है ये बढ़ता है और भी देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो पूरे विश्व के लिए ये बहुत चिंता का विषय होगा। अभी पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले भी चल रहा है और इजरायल में हमास का युद्ध गाजा में पहले ही चल रहा है। तो ये अगर होगा तो इसका पूरी विश्व की शांति पर और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच में साठगांठ है। इसमें अमेरिका को पूरी तरीके से इसके बारे में मालूम था और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है, परंतु ये उनकी शह पर ही काम किया गया है। दोनों में साठगांठ है, इजरायल और अमेरिका में, और इसीलिए अमेरिका ने ये धमकी दी है। उसने ये भी कहा है जो पहले हमने मोहलत दी थी ईरान को 60 दिनों की, जो वो हमारे साथ जो बातचीत कर रहा है न्यूक्लियर डील के बारे में, उसके बारे में पूरी उस जहां पर हस्ताक्षर करने हैं पूरे उसके बारे में सहयोग करे, परंतु उसने नहीं किया और कल 61वां दिन था तो इसीलिए इजरायल ने वहां पर हमला किया है। अभी भी चेतावनी दी है जो वो जल्दी से जल्दी इस न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, हस्ताक्षर कर दे, नहीं तो उसका हाल
और भी ज्यादा खराब होने वाला है। प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। वहां के जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं उन्होंने टेलीफोन पर प्रधानमंत्री मोदी को वहां की सबकी सूचना की, वहां के हालात की उन्होंने पूरी जानकारी दी। तो ये बिल्कुल दर्शाता है जो इजरायल और भारत बहुत ही सामरिक मित्र हैं, सहयोगी हैं, पार्टनर हैं और भारत ने यही मशवरा दिया है जो बातचीत से इस मुद्दे को हल किया जाए, क्योंकि अगर ये मुद्दा और आगे बढ़ता है तो ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय होगा, क्योंकि वहां हमारे करीब उस क्षेत्र में, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में हमारे करीब 90 लाख लोग हैं। हमारा जो एनर्जी है वहां से बहुत 50% से ऊपर मात्रा में हमारे पास एनर्जी आता है और हमारे जो रेमिटेंसेज हैं वहां से वो भी बहुत आते हैं। तो इसीलिए वहां पर स्थायित्व होना और वहां पर ऐसा युद्ध नहीं होना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-on Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms. फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। गुजरात सरकार के भी 36 जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के शवों की हालत इतनी भयावह है कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। शव बुरी तरह झुलसे हुए हैं। पहचान असंभव होने के कारण अब डीएनए टेस्टिंग का सहारा लिया जा रहा है। पहले ही बड़ी संख्या में सैंपल लिए जा चुके हैं ताकि शवों की सही पहचान कर उन्हें परिवारों को सौंपा जा सके। इस प्रक्रिया की निगरानी और समीक्षा के लिए गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का दौरा किया। उनके साथ गृह सचिव, IB के IGP और FSL के निदेशक भी मौजूद रहे। गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें खास तौर पे फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। उसी के साथ गुजरात सरकार के भी 36 जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट
लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स हैं वो तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। मैं अभी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पे एक डिटेल्ड बैठक हुई है और इसके बाद हम अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे भी इसी प्रकार से रात दिन काम चल रहा है। वहाँ विजिट के बाद टोटल ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया और जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा जल्द कैसे हो पाए उस पर काम चल रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms. दिल से बोली हुई बात दिल तक जाती ही है। अंदर से मैं बहुत खुश हो रहा हूं। क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं सर्विसेज में, लेकिन सबकी योग्यता भी हो और एग्जीक्यूट करने की तड़प हो, प्यास हो कि नहीं ये कर देना है, वो ऐसे लोग बिरले मिलते हैं। आपको छठ माता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है कि इस कार्यक्रम को हॉर्टिकल्चर से जुड़े एक व्यक्ति की विशेषज्ञता को पहचानने वाली मुख्यमंत्री जी के लिए, रेखा गुप्ता जी के लिए हमारे तरफ से भी जोरदार तालियां बजकर उनका स्वागत होना चाहिए। भाई कपिल मिश्रा जी, उन्होंने जिस प्रकार से आज अजय को काम दिया, मुख्यमंत्री जी के समक्ष उनका प्रेजेंटेशन होगा, ये सरकार की नीति और नीयत दोनों दिखा रहा है। जो बातें रोबिन ने कही, वैसे रोबिन भाई ने बहुत दिल से बोली, और दिल से बोली हुई बात दिल तक जाती ही है। उनको बहुत साधुवाद देता हूं। आपने बहुत अच्छे ढंग से अजय के बारे में बात की। राजीव तलवार साहब, आपकी बातों में एक दिल्ली को सकारात्मक रूप से ले जाने की पूरी जद्दोजहद है। और हमार एगो भाई जो एंकरिंग करते हैं कार्यक्रम के, आपके पूरा नाम कहा? नित्यानंद तिवारी जी, उनके खातिर भी ताली बजे। वो अच्छा से जोड़ले होना सबके कार्यक्रम के जोड़ल बहुत जरूरी बा। और अजय से हमारी मुलाकात अचानक एक दिन हुई। हमारे लड़के बताए कि बाहर ऑफिस में एक व्यक्ति बैठे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो मेरा मन में क्या आया कि मैं इनको बुला लिया, अंदर बुलाया।
तो मेरे लॉन से होते हुए मैं एक छोटा सा कमरा वहां बैठता हूं, वहां आए तो मैंने कहा हाँ बताइए। बोले आपका लॉन ठीक करना है। हम कह रहे ये अपने काम के लिए आया है व्यक्ति कि हमारे काम के लिए आया है। और मैं बताऊं उस दिन के बाद से जो उन्होंने मेरे लॉन को ठीक किया, मेरे यहां आने वाले जो विशेष अतिथि होते हैं जो अंदर तक घर में आते हैं वो एक बार लॉन जरूर देखना चाहते हैं। ऐसा लॉन बना दिया है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं काम करना चाहता हूं। और देखिए मेरा सौभाग्य कि मैं अभी कपिल भाई को बोलने वाला था, रेखा जी को बोलने वाला था, लेकिन उसके पहले ही आपने उनको पहचान लिया। ये हमारे लिए बहुत, अंदर से मैं बहुत खुश हो रहा हूं। क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं सर्विसेज में, लेकिन सबकी योग्यता भी हो और एग्जीक्यूट करने की तड़प हो, प्यास हो कि नहीं ये कर देना है, वो ऐसे लोग बिरले मिलते हैं। हम तो खैर हम उस संस्कृति से आते हैं जिसमें संस्कृति वृक्ष लगाने की, संस्कृति पानी को स्वच्छ रखने की, संस्कृति नदी को संभालने की, संस्कृति तालाब को ठीक करने की, तालाब बनाने की। हम तो उस संस्कृति से आते हैं जहां बेटियों को उसके साथ जो गिफ्ट दिया जाता है तो बहुत सारे लोग पोखरा खनवा के देते हैं, मतलब तालाब बना के, तुम जहां जा रही हो हम वहां तालाब बनाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम जाओ तो छठ के पर्व कर सको। ऐसा हमारे यहां गिफ्ट दिया जाता है। और उसमें हमारे आप आदरणीय रेखा जी, जब अभी हम लोग छठ के बारे में सुनते हैं, आपको छठ माता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार से आपने जमुना जी को, दिल्ली को स्वच्छ हरा भरा पानी स्वच्छ करने का जो प्रण लिया है, ये आपके 5 साल में दिल्ली को महसूस होगा कि जो काम 15 साल में होना चाहिए था वो 5 साल में हुआ है। ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि एक तो आपकी सोच अच्छी है, ऊपर से देश के प्रधानमंत्री का विश्वास, प्रधानमंत्री की जद्दोजहद समाज को ठीक करने की। अब देखिए आजकल एक नाम कितना चलता है कि एक पेड़, सबको पता है, तमाम मीडिया दिखाती रह जाती, तमाम अखबार लिखते रह जाते, ये जुबान पे नहीं आता कि, क्योंकि न्यूज में आना और जमीन पे करके दिखाने में बहुत अंतर है। इसलिए आप लोग, आप उस तरफ चल रही हैं रेखा जी, कपिल भाई, आप लोग जहां इस देश के लाख वर्ष पहले भी जिन्होंने सोचा होगा समाज कैसा हो, उस सोच को आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms. जिन लोगों की बॉडीज मिली हैं उनकी डीएनए टेस्टिंग चल रही है और हमारी पूरी संवेदनाएं हैं परिवार के साथ। आम आदमी पार्टी की पूरी स्थानीय टीम जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में से थी। वहां पे हादसे के मौके पर फायर टीम की मदद करने में, बॉडीज बाहर निकालने में उन्होंने मदद करी। अभी मैंने ट्रॉमा सेंटर विजिट किया है। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों की तरफ से ट्रॉमा सेंटर्स के डॉक्टर्स का, पूरे स्टाफ का, एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहूंगी। इतनी बड़ी त्रासदी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर होना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह यहाँ के डॉक्टर्स ने, यहाँ की पूरी स्टाफ ने, पूरी टीम यहाँ पे 24 घंटे काम कर रही है तो पूरा देश उनका आभारी है। अभी जो लोग मृत हैं, जिन लोगों की बॉडीज मिली हैं उनकी डीएनए टेस्टिंग चल रही है और हमारी पूरी संवेदनाएं हैं परिवार के साथ। जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। काफ़ी लोग जो घायल थे, खासकर के स्टूडेंट्स, डिस्चार्ज हो गए हैं। कई स्थानीय लोग, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। काफ़ी लोग जिनको बर्न्स हुए हैं उनका इलाज चल रहा है और वो आइसोलेशन में हैं। बहुत ही दिल दहलाने वाली ये दुर्घटना रही है और पूरे देश की संवेदनाएं आज इन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। इतना बड़ा हादसा होना, इतने परिवारों का अपनों को खोना, और हमारी संवेदनाएं विजय भाई रूपाणी जी के परिवार के साथ भी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता रहे। उनकी भी जान इस हादसे में गई है। आम आदमी पार्टी की पूरी स्थानीय टीम जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में से थी। वहां पे हादसे के मौके पर फायर टीम की मदद करने में, बॉडीज बाहर निकालने में उन्होंने मदद करी। और यहाँ पर भी हमने प्रशासन को भी और हॉस्पिटल की पूरी टीम को ये भरोसा दिलाया है कि कोई भी मदद अगर चाहिए हो, स्थानीय लोगों को मदद चाहिए हो, पेशेंट्स को मदद चाहिए हो, हॉस्पिटल को मदद चाहिए हो, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता हर संभव मदद के लिए उनके साथ हैं। क्या यहाँ से आप क्रैश साइट पे भी जाएंगी जायजा लेने के लिए? अभी साइट पे जाएंगी मैडम जायजा लेने के लिए? अभी यहाँ पे अभी प्लान अभी हम देखते हैं कि क्या आगे बनता है, लेकिन सबसे जरूरी है कि इस दुख की घड़ी में उन सारे परिवारों ने जिन्होंने अपनों को खोया है उनके साथ हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। सरकार की इन्वेस्टिगेशन से आप संतुष्ट हैं? सरकार ने जिस तरीके से डीजीसीए की इंक्वायरी कंडक्ट की है या अहमदाबाद पुलिस की तरफ से इंक्वायरी कंडक्ट है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे और कैसे टेक्निकल फॉल्ट होता है इतना बड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि इंक्वायरी होने से पहले, इंक्वायरी एक्सपर्ट्स के द्वारा खत्म होने से पहले हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं है। इसलिए टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि इन्हीं बातों से अफवाहें फैलती हैं, लोगों में बहुत ज्यादा डर फैलता है। तो मेरे ख्याल से हम सबको अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए, इंक्वायरी का इंतजार करना चाहिए, और एक बारी इंक्वायरी से पता चलता है कि इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ, उसके बाद ही उस पर चर्चा करें। डॉक्टर्स के लिए भी कॉम्पनसेशन की मांग करेंगे क्योंकि एयर इंडिया ने अभी तक जो जहाज के पैसेंजर थे उनके लिए कॉम्पनसेशन अनाउंस किया? नहीं, बिल्कुल कॉम्पनसेशन डॉक्टर्स, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि 4 डॉक्टर्स की तो कंफर्म डेथ हुई है। अभी बाकियों की संख्या पक्की नहीं है कि कितनी स्थानीय लोगों की हुई है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है। पर बिल्कुल कॉम्पनसेशन सबको मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से भी और एयर इंडिया की तरफ से भी। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. News UNI हम Jio TV बाबा Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये पहली यात्रा इस देश में और पहली मुलाकात होगी हमारे प्रधानमंत्री जी के साइप्रस के राष्ट्रपति जी से। ऐतिहासिक तौर पे बात करें तो हमारे संबंध तो मिलेनिया हैं और अगर फास्ट फॉरवर्ड थोड़ी आगे जाएं, जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इस यात्रा के बाद मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक हो या व्यापार, इन्वेस्टमेंट हो या साइंस टेक्नोलॉजी या ट्रेड हो, एजुकेशन हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, डिफेंस और सिक्योरिटी, सारे अभी जो है रिश्ता प्रधानमंत्री जी के आने के पहले वो उसमें और मजबूती आएगी। भारत और साइप्रस की जो मित्रता है, मैंने पहले भी कही, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, ये बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है। ट्रेडिंग तो हम भारत के और साइप्रस के लोग तो 3500 साल पहले से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये पहली यात्रा इस देश में और पहली मुलाकात होगी हमारे प्रधानमंत्री जी के साइप्रस के राष्ट्रपति जी से। और ये यात्रा 23 साल बाद हो रही है एक भारतीय प्रधानमंत्री की, तो इसी को लेके ये सिग्निफिकेंट है कि इतने सालों बाद भारतीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अगर ऐतिहासिक तौर पे बात करें तो हमारे संबंध तो मिलेनिया हैं और अगर फास्ट फॉरवर्ड थोड़ी आगे जाएं, जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ये भी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो दोनों की मित्रता काफ़ी थी नॉन अलाइन मूवमेंट के दिन से। अब कंटेम्प्रेरी युग में आते हैं, 62 साल से ज़्यादा हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुई है और हर क्षेत्र में पीछे भी काम हुआ और पिछले 10 साल में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है और हमारे संबंध में। और आने वाले दिनों में इस यात्रा के बाद मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक हो या व्यापार, इन्वेस्टमेंट हो या साइंस टेक्नोलॉजी या ट्रेड हो, एजुकेशन हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, डिफेंस और सिक्योरिटी, सारे अभी जो है रिश्ता प्रधानमंत्री जी के आने के पहले वो उसमें और मजबूती आएगी। और ख़ासकर मेरा एज ए हाई कमिश्नर मेरा ये रोल रहा है कि इकोनॉमिक इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ाया जाए और इस प्रयास में काफ़ी कुछ सफल रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा में ये और ज़्यादा सुदृढ़ होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि साइप्रस टॉप 10 कंट्रीज़ में से है जहाँ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है। तो ये ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, टूरिज़्म, पीपल टू पीपल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयाम है क्योंकि ये चीज़ें हमारे भारत के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे विज़न 2047 के लिए, इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी जानते हैं कि भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहाँ कितनी अपॉर्चुनिटी है। ये काफ़ी हमसे बहुत सारे सेक्टर में बातचीत कर रहे हैं, चाहे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्टार्टअप इनोवेशन हो। तो इसमें नए फिनटेक हो, फिनेंशियल सेक्टर में कॉपरेशन हो, तो ये सारे नए ये बातें सारी होंगी। और इसमें बिजनेस मीटिंग्स भी हैं, दोनों देश के बड़े व्यापारीगण, बिजनेस लीडर्स मिल रहे हैं कल। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये
काफ़ी पुश मिलेगा, बल मिलेगा। पॉलिटिकल रिलेशंस, डिफेंस सिक्योरिटी, ट्रेड टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में तो डेफिनेटली ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज पे तो जब दो देश के लीडर्स मिलते हैं तो उस पर तो वार्ता होती है, बातचीत होती है। और जो हमारी संबंध हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन में हो, चाहे कॉमनवेल्थ में हो, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में हो, या भारत यू के कॉन्टेक्स्ट में हो, यूरोपियन यूनियन, सब आयाम है हमारे रिलेशनशिप में। तो और सुदृढ़ होगा प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद। और ये मेरे लिए और हमारे जो राजदूतावास के हाई कमीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एटलीस्ट जब जो नेता मिलते हैं एक रोड मैप बनती है तो एक विज़न बनता है, तो फिर इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे तो हम लोग हैं। तो हमारे हाथ भी मजबूत होंगे दोनों लीडर के मिलने के बाद, ताकि हम इस रिश्ते को एक लॉजिकल कंक्लूजन की ओर ले जाएं, जो भी कर सकते हैं हम अपने लेवल पे। सर, इस विजिट को इस तरह से देखा जा रहा है कि जो भी अभी करंट सिनेरियो चल रहा है अलग अलग देशों के बीच में, तो लार्जर डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क की तरह देखा जा रहा है कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण विजिट के तौर पे देखा जाता है। किस तरह से देखते हैं जो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से? मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं हाई कमिश्नर हूँ भारत का साइप्रस में, तो मैं अपनी जो भी टिप्पणी या कमेंट्स उस पर ही रखना चाहूँगा। भारत और साइप्रस की जो मित्रता है, मैंने पहले भी कई दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, ये बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है। ट्रेडिंग तो हम भारत के और साइप्रस के लोग तो 3500 साल पहले से कर रहे हैं दोनों में। या आप देखें तो जो ब्लॉक प्रिंटिंग है हमारी, वो टेक्नोलॉजी जो टेक्सटाइल में ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं या कारीगरी करते हैं, ज्वेलरी में सिल्वर में या कॉपर है, ये सब दर्शाता है कि हम जुड़े हुए हैं काफ़ी से। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, आगे आइए अभी 2025 में, तो ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन में, हम पूरे विश्व में। तो सिनर्जी तो है, चाहे छोटा मुल्क हो या बहुत बड़ा मुल्क हो, कहीं ना कहीं तो आप की स्ट्रेंथ है। तो इनकी स्ट्रेंथ है क्योंकि ये रीजनली इंटीग्रेटेड हैं, यहाँ से सारे यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका। तो हमारी जो कंपनियाँ जो चाहती हैं कि एक्सपैंड करें, उनको बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे भी लीडरशिप की पॉलिसी है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाए। तो जो हमारी इंडियन कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है इस रीजन में, तो साइप्रस बहुत ही महत्वपूर्ण देश होगा उनके लिए। उनको क्योंकि ये आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट काफ़ी पॉजिटिव है, टैक्सेस काफ़ी अच्छी है, तो ये वो यहाँ बेस करके आगे एक्सपैंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे जो सिप्रियोट काफ़ी फंड मैनेजर्स हैं, फिनटेक एरिया में हैं, हम भारत के नए गिफ्ट सिटी बनाए हैं, वो उससे रिलेटेड भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, ताकि गिफ्ट सिटी में जो NSC है और यहाँ के जो है उसमें भी वार्ता हो रही है। या फिर आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, UPI, इस पे क्या हम हेल्प कर सकते हैं, इस पे भी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। और स्टार्टअप इनोवेशन में तो ये काफ़ी अच्छा है हमारे। तो हमारी कंपनियां जो स्टार्टअप इंडिया से पिछले 2 सालों में काफ़ी आके यहाँ पे स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स आए, वो अपॉर्चुनिटी भी है। और इनकी अपनी भी पॉलिसी है, ये लोग भी काफ़ी एग्रेसिवली पिछले 1-1.25 साल से सिप्रियोट इन्वेस्टमेंट एजेंसीज, और वो भी इंडिया में काफ़ी अपने जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के उस पर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा, सारे स्टेक होल्डर्स जब एक दूसरे को पसंद करते हैं, इम्पोर्टेंस समझते हैं भाईचारा, तो और ये देश एशिया, हमारी जो भारत है कि फैमिली वैल्यूज़ है, कल्चरल वैल्यूज़ है, सब एक दूसरे को इज्जत करते हैं, वो सेंस आपको मिलेगा अगर आपने अभी तक देखा हुआ। तो वो मित्रता और गहरी होगी। और जैसे कि मुझे इम्प्रेशन मिला है कि काफ़ी उत्साहित हैं यहाँ के लीडरशिप भी, यहाँ के लोग भी, कि प्रधानमंत्री जो दुनिया की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के लीडर हैं वहाँ आ रहे हैं। तो और ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री है,
तो आई थिंक मेरा मानना है कि नए मार्ग खुलेंगे, नया आयाम होगा इस विजिट से और ऐतिहासिक विजिट मानी जाएगी भारत साइप्रस के रिलेशंस में। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms. कि पिछले 3-4 वर्षों में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधाओं की दृष्टि से काफी बढ़ोतरी की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CAPF के लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद इंतजाम किया है। 22 अप्रैल को जो बैसरन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसके पश्चात गृहमंत्री जी ने मौके का मुआयना किया, यहाँ से वो वापस गए। उसके बाद अब यात्रा श्री अमरनाथ जी वाली प्रारंभ होने वाली है। तो आज उसी दृष्टि से मैं पहलगांव आया था। जिस नौजवान ने अपनी शहादत दी थी, आदिल उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी है। यहीं फिशरीज डिपार्टमेंट में अनंतनाग में उसको नियुक्ति पत्र आज दे दिया गया है। यात्रा की दृष्टि से जो रजिस्ट्रेशन है वो बड़ी संख्या में हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधाओं की दृष्टि से काफी बढ़ोतरी की गई है। चाहे वो ग्रिड पावर की कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, जो मार्ग बहुत सकरा 4 और 5 फीट चौड़ा हुआ करता था वो 12 फीट हो गया है। यात्रियों को रुकने की क्षमता भी बढ़ाई गई है और मुझे लगता है कि क्वालिटी भी बढ़ाई गई है। तो नुनवान बेस कैंप को आज हम लोगों ने विजिट किया। मोटे तौर पर तैयारियां अच्छी चल रही हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CAPF के लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद इंतजाम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों ने सदैव इस यात्रा को अपना सहयोग दिया है। तो मैं कश्मीर के लोगों से विशेष रूप से चाहूँगा कि इस यात्रा में आप सब आगे बढ़ करके, आपकी यात्रा है, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और यहीं से मुझे लगता है कि टूरिज्म का फिर से रिवाइवल शुरू होगा। इस दृष्टि से सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। सुरक्षा की दृष्टि से 22 अप्रैल के बाद कुछ स्थान पर्यटन के सिक्योरिटी रीजन से बंद किए गए थे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और IG जम्मू तथा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डिविजनल कमिश्नर IG कश्मीर ने मिलकर के सभी जिलों से रिपोर्ट लेकर के फेज वाइज फैसला किया है कि कुछ कुछ स्थान हम खोलते जाएंगे। तो आज जिन स्थानों को चिन्हित करके फैसला हुआ है कि इन स्थानों को अब सामान्य पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा,
उसमें अनंतनाग में बेताब वैली, पहलगांव, पार्क्स इन पहलगाम मार्केट, ये सब खोल दिए जाएंगे। वेरीनाग गार्डन, कोकरनाग गार्डन और अच्छबल गार्डन। वैसे ही श्रीनगर में बादामवारी पार्क, डक पार्क नगीन के पास जो है, और तकदीर पार्क हजरत बल के पास, ये 8 स्थान विचार करके फैसला किया गया है और 2 दिन बाद यहाँ पर्यटक जा सकेंगे। वैसे ही जम्मू रीजन में भी कठुआ में सारथल और ठग्गर, रियासी में देवी पिंडी, सियार बाबा और सुला पार्क, डोडा में गुलडंडा और जयवैली तथा उधमपुर में पंचेरी, ये 8 स्थान प्रथम चरण में खोले जा रहे हैं। फिर ये कमेटी जो है आईजी साहब और डिप्काम साहब की जिलों से रिपोर्ट लेकर के टूरिज्म से बात करके नेक्स्ट फेज में कुछ और स्थान खोले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो पर्यटक आ रहे हैं, वंदे भारत चलने के बाद एक नया उत्साह लोगों में है। रेलवे के लोगों ने जो मुझे बताया कि अगले 10-12 दिनों तक सारे टिकट बुक हो गए, तो धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। हर तरफ से कोशिश हो रही है। भारत सरकार भी, अभी कृषि मंत्री जी से मेरी बात हो रही थी, तो अपनी संसदीय समिति की बैठक को श्रीनगर में करना चाहते हैं। भारत सरकार भी पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस, कमेटी, सरकारी बैठकें, ये सब श्रीनगर में आयोजित होंगी, जिससे मुझे लगता है कि फिर से एक विश्वास का वातावरण बहाल होगा और सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मैं देशवासियों से, जो भी बाबा के भक्त हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो बड़ी संख्या में आवें। हाँ, ये जरूर मेरा आग्रह होगा कि जम्मू से चलते वक्त कन्वॉय में ही आवें, ये मैं सबसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा, क्योंकि पर्याप्त सुरक्षित ढंग से उन्हें ले आने के लिए एक विधिवत प्लान सिक्योरिटी एजेंसीज ने बनाया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। तो इतनी ही बात मुझे आप सबसे कहनी थी। अब ये मैं समझता हूँ कि इससे जो लोग यहाँ आ रहे हैं पहलगांव में, उनको शाम को जाने आने में, बाकी जो स्थान है जल्दी फैसला उस पर भी करेंगे। सर, लोकल्स के लिए कोई खास धन्यवाद, कोई खास अपील करना चाहेंगे सर? मैंने कर दिया कि ये यात्रा प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, यहाँ के लोग ही कराते रहे। तो प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। ये कश्मीर और जम्मू के लोगों की यात्रा है। बाबा की यात्रा में सब लोग सहयोग करें, अपनी यात्रा मान करके जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस यात्रा में पूरी तरह से सहयोग करें। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms. ये सबसे बड़ा हमला है और इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं,
मिसाइल फैसिलिटीज हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है, परंतु ये उनकी शह पर ही काम किया गया है। दोनों में साठगांठ है, इजरायल और अमेरिका में। चेतावनी दी है जो वो जल्दी के जल्दी इस न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, हस्ताक्षर कर दे, नहीं तो उसका हाल और भी ज्यादा खराब होने वाला है। बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि इजरायल ने पहले भी जो वहां पर पश्चिम एशिया में जो किसी भी देश ने अगर प्रयास किया है न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एनरिचमेंट को करने का, तो उन्होंने उसके विरुद्ध ये अटैक्स किए हैं, हमला किया है। इराक के विरुद्ध किया था, सीरिया के विरुद्ध किया, परंतु ये जो अभी कल और आज किया है ईरान के विरुद्ध, ये सबसे बड़ा हमला है। और इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, मिसाइल फैसिलिटीज हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। तो बहुत चिंता का विषय है जो अगर ये जो युद्ध है ये बढ़ता है और भी देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो पूरे विश्व के लिए ये बहुत चिंता का विषय होगा। अभी पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले भी चल रहा है, और इजरायल में हमास का युद्ध गाजा में पहले ही चल रहा है। तो ये अगर होगा तो इसका पूरी विश्व की शांति पर और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच में साठगांठ है। इसमें अमेरिका को पूरी तरीके से इसके बारे में मालूम था, और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है, परंतु ये उनकी शह पर ही काम किया गया है। दोनों में साठगांठ है, इजरायल और अमेरिका में, और इसीलिए अमेरिका ने ये धमकी दी है। उसने ये भी कहा है जो पहले हमने मोहलत दी थी ईरान को 60 दिनों की, जो वो हमारे साथ जो बातचीत कर रहा है न्यूक्लियर डील के बारे में, उसके बारे में पूरी उस जहां पर हस्ताक्षर करने हैं पूरे उसके बारे में सहयोग करे, परंतु उसने नहीं किया। और कल 61वां दिन था, तो इसीलिए इजरायल ने वहां पर हमला किया है। अभी भी चेतावनी दी है जो वो जल्दी के जल्दी इस न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, हस्ताक्षर कर दे, नहीं तो उसका हाल और भी ज्यादा खराब होने वाला है। प्रधानमंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। वहां के जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने टेलीफोन पर प्रधानमंत्री मोदी को वहां की सबकी सूचना की, वहां के हालात की उन्होंने पूरी जानकारी दी। तो ये बिल्कुल दर्शाता है जो इजरायल और भारत बहुत ही सामरिक मित्र हैं, सहयोगी हैं, पार्टनर हैं, और भारत ने यही मशवरा दिया है जो बातचीत से इस मुद्दे को हल किया जाए, क्योंकि अगर ये मुद्दा और आगे बढ़ता है तो ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय होगा, क्योंकि वहां हमारे करीब उस क्षेत्र में, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में हमारे करीब 90 लाख लोग हैं। हमारा जो एनर्जी है वहां से बहुत 50% से ऊपर मात्रा में हमारे पास एनर्जी आता है, और हमारे जो रेमिटेंसेज हैं वहां से वो भी बहुत आते हैं। तो इसीलिए वहां पर स्थायित्व होना और वहां पर ऐसा युद्ध नहीं होना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on this OTT